listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, Thank you very much for tuning in to this broadcast. इस प्रसारण में सम्मिलित होने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। And if you are joining our broadcast for the first time, और यदि आप पहली बार हमारे प्रसारण में सम्मिलित हो रहे हैं, we are in the middle of a series of messages from the book of Nehemiah. तो हम नहम्याह की पुस्तक पर आधारित संदेश श्रृंखला के मध्य में हैं। We have seen that Nehemiah is a model of leadership, courage and confidence. हमने देखा कि नहम्याह नेतृत्व, साहस और आत्मविश्वास का आदर्श है। He is a model of someone who understands God's will in his life. वो ऐसे मनुष्य का उदाहरण है जो अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को समझता है। And he is a model of someone who starts a rebuilding program. और वो ऐसे मनुष्य का उदाहरण है जो पुनर्निर्माण कार्यक्रमों को शुरू करता है। Today we're going to look at the third chapter in the book of Nehemiah. आज हम नहम्याह की पुस्तक 3 अध्याय पर गौर करेंगे। Please turn to it in your Bibles. कृपया अपनी बाइबलों को इस पर खोलें। In chapter 3, we see how a good model of God's work can be done effectively. 3 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर के कार्य के अच्छे नमूने को कैसे प्रभावशाली रूप से काम में लाया जा सकता है। This model is relevant to churches, to families, and to work. कार्य का ये नमूना कलीसियाओं, परिवार या कार्य के प्रासंगिक है। This chapter tells us about the entire strategy for the rebuilding of the wall. ये अध्याय हमें दीवार के पुनर्निर्माण की पूरी कार्यविधि के बारे में बताता है। Please allow me to ask you a question. कृपया मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। Do you know that God has a strategy for your life? क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक कार्यविधि है? When you let yourself be an instrument of God's strategy, जब आप अपने आप को परमेश्वर की कार्यविधि का औजार बनने देते हैं, you will have a passion and zest for living, तो आप में जीने के लिए जोश और उत्साह होगा। because you are doing what God wants you to do. क्योंकि आप वो कर रहे हैं जो परमेश्वर आपसे चाहता है। God has a strategy for believers to make a difference in their homes and in their communities and in the world. विश्वासियों के लिए परमेश्वर के पास एक कार्यविधि है कि वो अपने घरों, समाज और संसार में एक फर्क लाएं। When Nehemiah spent sleepless nights probing the broken wall, जब नहम्याह टूटी हुई दीवार की जांच पड़ताल में नींद रहित रातें बिता रहा था, he was not sure what to do. तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। So Nehemiah did what he always did. तो नहम्याह ने वही किया जो वो हमेशा करता था। He went to God. वो परमेश्वर के पास गया। God gave him his strategy. परमेश्वर ने उसे अपनी कार्यविधि दी। Nehemiah had to get the people motivated to rise up and build. नहम्याह को लोगों को उठकर निर्माण करने के लिए प्रेरित करना था। He had to give them ownership of the project. उसे उनको इस परियोजना के मालिक बनाना था। He had to make them aware of the responsibility to be part of God's work. उसे उनको परमेश्वर के कार्य का हिस्सा बनने की जिम्मेदारी का एहसास दिलाना था। And in 52 days, they accomplished the task. और 52 दिनों में उन्होंने कार्य पूरा कर लिया। They rebuilt the wall उन्होंने दीवार को फिर से बना दिया, because the people were willing and ready to obey God's vision. क्योंकि लोग परमेश्वर के दर्शन का पालन करने के लिए तैयार थे। There are 3 lessons that Nehemiah teaches us about how to be effective for God. परमेश्वर के लिए प्रभावशाली बनने के 3 सबक हैं जो नहम्याह हमें सिखाता है। First, पहला, there must be consolidation. एकत्रीकरण आवश्यक है। Second, दूसरा, there must be cooperation. सहमति होना आवश्यक है। And thirdly, और तीसरा, there must be confirmation. प्रमाणीकरण होना आवश्यक है। First, we will look at consolidation. सबसे पहले हम एकत्रीकरण को देखेंगे। In verses 2 to 10, the phrase next to them literally means at their hands. 2 से 10 पदों में वाक्य उनसे आगे का यथार्थ अर्थ है उनके हाथों पर। They were literally standing hand in hand. वो सच में एक दूसरे के हाथ पकड़कर खड़े रहते थे। As we saw in the last message, जैसे कि हमने पिछले संदेश में देखा, Nehemiah rebuked the critics and the obstructionists. नहम्याह ने आलोचकों और बाधा डालने वालों को डांटा। Now he consolidates the faithful's hands in building the wall. अब वो दीवार बनाने के लिए विश्वास योग्य लोगों के हाथों को एक करता है। God's hand is already moving and working in Nehemiah's heart. परमेश्वर का हाथ पहले ही नहम्याह के हृदय में कार्य कर रहा है। Now it is time for the hands of God's people to work with him. अब परमेश्वर के लोगों के हाथों का उसके साथ मिलकर काम करने का समय है। My listening friend, listen to me carefully. मेरे श्रोता मित्र, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। When you do God's work, जब आप परमेश्वर का कार्य करते हैं,
you are literally joining your hands with the hand of God. तो आप यथार्थ में परमेश्वर के हाथ के साथ हाथ मिलाते हैं, And then you join with the hands of others as you build together. और फिर मिलकर बनाते हुए आप दूसरों के हाथ से हाथ मिलाते हैं। The Bible says that we are co-laborers together with God. बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर के साथ मिलकर सहकर्मी हैं। Jesus is building his church with our hands. यीशु हमारे हाथों से अपनी कलीसिया का निर्माण कर रहा है। How? कैसे? By consolidating those who love him. उनको एकत्र करके जो उससे प्रेम करते हैं। Jesus is building his church by our involvement in the work. यीशु हमें कार्य में शामिल करके अपनी कलीसिया का निर्माण कर रहा है। In Nehemiah chapter 3, नहमीया की पुस्तक 3 अध्याय में there are 38 different names and 42 different groups that were counted for. 38 अलग अलग नाम और 42 ऐसे अलग अलग समूह हैं जो काम में लगाए गए। The diversity of this group is astounding. इस समूह की भिन्नता अद्भुत है। In verse 1, एक पद में we see the priests and the high priests were assigned to building the sheep gate. हम देखते हैं कि याजकों और महायाजकों को भेड़ फाटक बनाने का काम दिया गया। Priests were normally doing priestly things, not out on the walls building. याजक आमतौर पर दीवार का निर्माण कार्य न करते हुए अपने याजकीय काम ही कर रहे थे। But Nehemiah convinced them to add their hands to the work. परंतु नहमीया ने उन्हें काम में हाथ बटाने के लिए मना लिया। In verses 9 and 12, 9 और 12 पदों में we see that several sons of rulers were part of the consolidation process. हम देखते हैं कि शासकों के कई पुत्र भी एकत्रीकरण प्रक्रिया का हिस्सा थे। Rulers and priests worked side by side to do the work of God. शासक और याजक परमेश्वर का कार्य करने के लिए साथ साथ काम कर रहे थे। In verse 12, 12 पद में we see some single women who were working the wall. हम कुछ कुंवारी स्त्रियों को दीवार के कार्य में लगे देखते हैं। Now, if you read very carefully, अब यदि आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें, you will see that some bachelors were also working on the wall too. आप देखेंगे कि कुछ कुंवारे पुरुष भी दीवार के कार्य में लगे हुए थे। Then skilled builders and perfumers and clothiers all were consolidated together hand in hand to build the wall. फिर निपुण निर्माणकर्ता, इत्र बनाने वाले, कपड़ा बुनने वाले सब दीवार के निर्माण में एकत्र होकर एक दूसरे के हाथ थामकर काम में लगे हुए थे। In verses 11, 19, 21, 24, 27 and 30, 11, 19, 21, 24, 27 और 30 पदों में we read of people who went beyond the call of duty to do more than was expected of them. हम उन लोगों के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने अपने जिम्मे और आशा से भी बढ़कर काम किया। Yet tragically we read in verse 5 तो भी दुख की बात है कि जब हम 5 पद पढ़ते हैं that there were certain nobles from Tekoa who did not put their shoulders to the work of the Lord. वहां तकोआ के कुछ रईस लोग थे जिन्होंने प्रभु के कार्य में हाथ नहीं बटाया। Tragically, even today, there are few people who work hard while others sit on the fence and watch them. दुखद है कि आज भी कुछ ही लोग हैं जो कड़ा परिश्रम करते हैं जबकि बाकी दूर बैठकर उन्हें देखते हैं। Some people want to share in the victories but not in the battles. कुछ लोग विजय में सहभागी होना चाहते हैं परंतु युद्ध में नहीं। Serving Jesus Christ means that we all have a part. यीशु मसीह की सेवा करने का अर्थ है कि हम सबका कुछ भाग है। That we all must participate. वो है कि हम सबको हिस्सा देना चाहिए And that we all must be consolidated. और ये कि हम सबको एक होना चाहिए। There are many people who are without Christ. बहुत लोग हैं जो मसीह के बिना हैं। People who are heading for the judgment of God unless they respond to Jesus' invitation. लोग जो परमेश्वर के न्याय की ओर बढ़ रहे हैं जब तक कि वो यीशु के निमंत्रण का प्रत्युत्तर नहीं देते। And as believers, we have the message of eternal life. और विश्वासी होते हुए हमारे पास अनंत जीवन का समाचार है। Some of you listening today should ask yourself these questions. आज आप सुनने वालों में से कईयों को खुद से ये प्रश्न पूछना चाहिए। If every person witnesses like I witness, how many would come to know Jesus Christ? यदि हर व्यक्ति मेरी तरह दूसरों को यीशु के विषय में बताए तो कितने लोग यीशु मसीह को जान जाएंगे। Consolidation is the secret of a vibrant, growing church and fellowship of believers. जोशीली बढ़ती हुई कलीसिया और विश्वासियों की संगति का रहस्य एकत्रीकरण है। The second lesson in Nehemiah chapter 3 is cooperation. नहमीया की पुस्तक 3 अध्याय में दूसरा सबक है सहयोग।
The workers were consolidated individually, कार्यकर्ता निजी रूप से एक थे, but also there was teamwork. परंतु वहां समूह के रूप में भी कार्य था। Some people removed the debris. कुछ लोगों ने मलबा हटाया, Others were mixing the mortar. बाकी लोग मसाला बना रहे थे। Some laid the stones. कुछ लोगों ने पत्थर टिकाए, Other people were foremen. कुछ लोग काम के मुखी थे। There was a big diversity among the people and their jobs. लोगों में और उनके कामों में बहुत भिन्नता थी, Yet there was unity in purpose. तो भी उद्देश्य के लिए उनमें एकता थी। This is a picture of how the Church of Jesus Christ ought to work. ये तस्वीर है कि यीशु मसीह की कलीसिया को कैसे कार्य करना चाहिए। We recognize our different gifts, हम अपने अलग अलग वरदानों को पहचानते हैं, and yet we are united in our purpose. तो भी अपने उद्देश्य में हम एक हैं। Every member is an integral part, हर सदस्य एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, yet we don't all do the same thing. तो भी हम सब एक ही कार्य नहीं करते। Everyone is working in a different place, हर कोई अलग अलग स्थान में कार्य कर रहा है, yet every place is pivotal. तो भी हर स्थान महत्वपूर्ण है। When few people do the work and the rest just watch, जब कुछ लोग काम करते हैं और बाकी बस उन्हें देखते हैं, sooner or later, those who are doing the work will be exhausted and weary. कभी न कभी वो जो काम कर रहे हैं थक जाएंगे और क्षीण हो जाएंगे। When Nehemiah gives us the list, he merely gives us the heads of the households. जब नहेमिया हमें सूची देता है तो वो केवल हमें घर के मुखियों के नाम ही बताता है। He does not mention every individual who was involved. वो हर व्यक्ति के बारे में नहीं बताता जो कार्य में शामिल था। This doesn't matter. इसका कोई मतलब नहीं है। People may not notice what you do for God, but God does. लोग शायद उस पर ध्यान न दे जो आप परमेश्वर के लिए करते हैं, परंतु परमेश्वर देता है। Listen to Hebrews chapter 6 verse 10. इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय के 10 पद को सुनिए। For God is not unjust to forget your work and labor of love, which you have shown toward his name, in that you have ministered to the saints and do minister. क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। God is not unjust. परमेश्वर अन्यायी नहीं है। He knows full well the quiet things that you are doing for him. वो उन शांत कार्यों को पूर्ण रूप से जानता है जो आप उसके लिए कर रहे हैं। He sees the seemingly unimportant tasks that you are doing. वो उन महत्वहीन लगते कार्यों को देखता है जो आप कर रहे हैं। They may go unnoticed by man, but God notices them. वो शायद मनुष्य के ध्यान में न आए, परंतु परमेश्वर उन पर ध्यान करता है। You must concentrate on what is important to the kingdom and to the heart of God. जो परमेश्वर के राज्य और उसके हृदय के लिए महत्वपूर्ण है, आपको उस पर चित्त लगाना आवश्यक है। If they don't work for the purpose of God, यदि वे परमेश्वर के उद्देश्य के लिए कार्य नहीं करते, they will work at cross purposes with others. तो वो दूसरों के साथ गलत उद्देश्यों के लिए काम करेंगे। They would be like the two men who were straining to wedge a large piece of furniture through the door. वो उन दो व्यक्तियों के समान होंगे जो एक लकड़ी के बड़े से मेज को दरवाजे से अंदर लाने का प्रयत्न कर रहे थे। Finally, one of them turned to the other one and groaned. अंततः एक आदमी ने व्याकुल होते हुए दूसरे से कहा, I don't think we are ever going to get this furniture into this house. मुझे नहीं लगता कि हम इस फर्नीचर को घर के अंदर ला पाएंगे। The other man stunned and said, दूसरे व्यक्ति ने चकित होते हुए कहा, Get it into the house. इसे घर के अंदर ले जाना है। I thought we're trying to get it out of the house. मैंने तो सोचा कि हम इसे घर से बाहर निकाल रहे हैं। Now this happens when people start working for what they want and do not serve the will of God. अब ऐसा तब होता है जब लोग अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कार्य करना शुरू करते हैं और परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते। Suddenly they begin to focus on how right they are and how wrong others are. जल्दी ही वो इस बात पर गौर करने लगते हैं कि वो कितने सही हैं और दूसरे कितने गलत हैं। And before long, instead of using spiritual methods, they are using carnal methods to deal with spiritual problems. और ज्यादा समय नहीं बीतता कि आत्मिक तरीके इस्तेमाल करने के बजाय आत्मिक समस्याओं से निपटने के लिए वो सांसारिक तरीके इस्तेमाल करने लगते हैं। And before you know it, they are out of step with God. और इससे पहले कि आपको पता चले वो परमेश्वर से हट जाते हैं। There are some believers who refuse to cooperate in doing the work of God कई ऐसे विश्वासी हैं जो परमेश्वर का कार्य करने में सहयोग देने से इनकार करते हैं।
Because to do the will of God, you must move closer in unity. क्योंकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आपको एकता में समीप आना आवश्यक है। You must work hand in hand, heart to heart with others. आपको दूसरों के साथ दिल से दिल और हाथ से हाथ मिलाकर काम करना आवश्यक है। Nehemiah shows us that we must have consolidation and cooperation. नहम्याह हमें दिखाता है कि हम में एकता और सहयोग होना आवश्यक है। The third thing he teaches us is this. तीसरी बात जो वो हमें सिखाता है वो ये है, To work effectively for God, there must be confirmation. परमेश्वर के लिए प्रभावशाली रूप से कार्य करने के लिए प्रमाणीकरण होना आवश्यक है। To Nehemiah, people were not mere statistics. नहम्याह के लिए लोग मात्र आंकड़े नहीं थे। He names them throughout chapter 3. वो पूरे 3 अध्याय में उनके नाम बताता है। Nehemiah saw his task as that of an encourager. नहम्याह ने अपने काम को उत्साहित करने वाले के रूप में देखा। He walked around the wall, affirming and confirming their work. वो उनके कार्य को दृढ़ और पक्का करते हुए दीवार के चारों ओर फिरता रहा। A leader is not a leader unless they learn to be encouragers and affirmers and confirmers. एक अगुआ तब तक अगुआ नहीं है जब तक कि वो पक्का करने वाला, दृढ़ करने वाला और प्रोत्साहित करने वाला नहीं है। Parents need to affirm their children. माँ बाप को अपने बच्चों को दृढ़ करने की जरूरत है। They need to affirm good character, good deeds, and good thoughts, kindness and sincerity. उन्हें अच्छा चरित्र, अच्छे काम, अच्छे विचार, दया और सच्चाई को दृढ़ करना है। In fact, Nehemiah does not mention his own job description, बल्कि नहम्याह अपने कार्यभार के बारे में नहीं बताता, and that is why his leadership was great. और इसीलिए उसका नेतृत्व महान था। He was the kind of man who was willing to give the credit to others. वो ऐसा व्यक्ति था जो सारा श्रेय दूसरों को देने के लिए तैयार था। He recorded their names and shared the victory with them. उसने उनके नाम दर्ज किए और विजय को उनके साथ बांटा। The Bible says, बाइबल कहती है, give honor to whom honor is due. जो आदर का हकदार है उसे आदर दो। Can you comprehend the fact that the God of the universe wants to use you? क्या आप इस तथ्य को समझ सकते हैं कि पूरी सृष्टि का परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है? You say, I'm not important. आप कहते हैं मैं तो खास नहीं हूँ, God can't use me. परमेश्वर मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकता, I can't do much. मैं ज्यादा नहीं कर सकता। My friend, that is a lie. मेरे मित्र, ये झूठ है। God wants to use you. परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। You can make a difference. आप फर्क ला सकते हैं। When you are consolidated behind God's vision, जब आप परमेश्वर के दर्शन के पीछे हो जाते हैं, when you are cooperating in achieving God's plan, जब आप परमेश्वर की योजना पूरी करने में सहयोग देते हैं, God can do great things with us. तो परमेश्वर हमारे साथ महान कार्य करता है। When we are confirming others in their call, जब हम दूसरों को उनकी बुलाहट में दृढ़ करते हैं, God can do great things among us. तो परमेश्वर हमारे बीच में बड़े बड़े कार्य कर सकता है। God is calling every one of you to make a difference, just as Nehemiah did. परमेश्वर आप में से हर किसी को बुला रहा है कि आप फर्क लाएं, बिल्कुल वैसे ही जैसे नहम्याह ने किया। You can be Nehemiah in your neighborhood. आप अपने पड़ोस में नहम्याह बन सकते हैं। You can be a Nehemiah in your village. आप अपने गांव में नहम्याह बन सकते हैं। You can be a Nehemiah in your city. आप अपने शहर में नहम्याह बन सकते हैं। You can be a Nehemiah in your country. आप अपने देश में नहम्याह बन सकते हैं। God wants to use you. परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। It is my prayer that you would say yes to the Lord. मेरी प्रार्थना है कि आप प्रभु को हाँ कहें। Until next time, I wish you God's richest blessing. अगली बार तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूं।